ہمارا یہ 3 ماہ کا انہوں نے ہمارا 3 ماہ کا پروگرام اٹینڈ کیا اور الحمدللہ اچھے نمبرات حاصل کیے اور آج انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں ٹیچرز کو چند باتیں یاد دہانی کے طور پر اور چند باتیں آج کے اس فنکشن سے ٹیک ہوم کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے جو ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کیا اس سے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ ہم نے اس پروگرام کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آپ موجودہ زمانے کے جو ماڈرن پروفیشنل ٹیکنکس ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کلاس روم میں ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے اسے بھی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی ایک یونیک فیچر ہے ہمارے اس ٹریننگ پروگرام کی، وہ ہے کہ آپ بچوں کی شخصیت سازی کیسے کر سکیں یا بچوں کی مورل ایجوکیشن، مورل انٹرنلائزیشن، اخلاقی تربیت کیسے کر سکیں، اس کی مکمل ایڈوانس ٹریننگ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دی گئی ہے۔ امید کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو بخوبی حاصل کیا ہوگا۔ سماج میں جو مختلف ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان میں ٹیچرز کی بھی ذمہ داری بڑی بنیادی ہے۔ ٹیچرز سماج کے چینج میکر ہوتے ہیں۔ سماج میں تبدیلی، ملک کی تعمیر وہ ٹیچرز کے ذریعے ہی ممکن ہے اور یہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج ٹیچرز کی جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھیں گے تو افسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ زمانے کے ٹیچرز وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جس کے ہم متمنی ہیں، جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ٹیچرز جو ہمارے ٹریننگ پروگراموں سے گزرتے ہیں، ہم ان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیچر بن سکتے ہیں اور ایک ٹیچر کا جو کردار ہے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ پوری ٹریننگ میں ہم نے ٹیچر کے کانسیپٹ کو چینج کر دیا اور آپ نے اس کو یقیناً ایبزارب کیا ہوگا۔ ہماری نظر میں ٹیچر محض ٹیچر نہیں ہے، بلکہ ٹیچر مربی ہے، ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہے، ٹیچر ایک ماڈل ہے، ٹیچر ایک رول پلے کرتی ہے جس کے نتیجے میں بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ ٹیچر محض ٹرانسفر آف نالج نہیں کرتی، ٹیچر محض کوشچن آنسر لکھانے کا نام نہیں ہے، ٹیچر ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرنے کا کام نہیں کرتی، بلکہ پوری بچے کی شخصیت کو، بچے کی شخصیت ہی نہیں اس کے فیملی کو چینج کرنے کا ایک عظیم مقصد رکھتی ہے۔ اس لیے کہ بچے کے حوالے سے ایک ٹیچر کنیکٹ ہو جاتی ہے ان بچے کے پیرنٹ سے، اور بچوں کے پیرنٹ کے ذریعے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے پورے ایک خاندان اور سماج سے۔ تو اس طرح آپ تمام ایک چینج میکر ہیں، اور آپ نے الحمدللہ 3 مہینوں میں زبردست ٹریننگ حاصل کر لی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ حاصل کی تھی اس کو آپ بار بار اس ٹریننگ میں جو مواد دیا گیا
اس کا آپ اعادہ کرتے رہیں. وہ جو ویڈیوز آپ کو پرووائڈ کیے گئے تھے ان ویڈیوز کو آپ بار بار دیکھتے رہیں. ان ویڈیوز کے حد تک ہی نہ رہیں آپ، بلکہ آپ مزید اپنے نالج کو اپ گریڈ کرنے کی، اپ ڈیٹ کرنے کی اور اس کے اندر اپنے طور پر ایڈیشن کرنے کی کوشش کریں. پچھلا جو ہمارا فیلیسیٹیشن کا پروگرام ہوا تھا پہلے بیچ کا، میں نے اس وقت بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ تمام ٹیچرز جو اس پروگرام میں شامل تھے وہ اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں اور اپنے مسائل اس میں شیئر کریں. لیکن ہاں، واٹس ایپ گروپ میں صرف پروفیشنل ڈسکشن ہی ہو، ورنہ واٹس ایپ گروپ بن جاتا ہے، پروفیشنل ڈسکشن کم ہوتا ہے اور دوسری چیزیں اس میں زیادہ گردش کرنے لگتی ہیں، شیئر ہونے لگتی ہیں. دوسرے چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے آپ اور ذرائع اور گروپ استعمال کریں، لیکن اس گروپ میں آپ صرف اور صرف اپنا پروفیشنل گروتھ کا کنٹینٹ ہی شیئر کریں. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس 3 مہینوں میں، جو کچھ آپ کو ٹریننگ دی گئی وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ان تمام سکلز کو، ان تمام صلاحیتوں کو، اس نالج کو جو آپ نے ایکوائر کیا اس کو آپ کلاس روم میں امپلیمنٹ کریں. کلاس روم بہترین ریسرچ سینٹر ہے، کلاس روم بہترین لرننگ پلیس ہے، کلاس روم آپ کے اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے، کلاس روم آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو، جو نالج آپ کو دیا گیا اس کو آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں بلکہ کلاس روم میں امپلیمنٹ کریں. اور جب بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے آپ برادر عمری سے کانٹیکٹ کریں اور آپس میں بھی آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پورے پروگرام میں ایک اہم چیز ہم نے اسٹاف روم کے بارے میں بھی ڈسکشن کیا ہے. اسکول کے اسٹاف روم بہت بڑی لیب ہوتے ہیں، بہت بڑے گائیڈنس سینٹر ہوتے ہیں اور اسٹاف روم بھی ہماری پروفیشنل گروتھ کا بڑا سینٹر ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک بڑی تعداد اسکولوں کی ایسی ہے جن کے پاس اسٹاف روم ہوتا ہی نہیں، اور جن اسکولوں میں اسٹاف روم ہوتا ہے ان میں اکثریت ایسے اسٹاف روم کی ہوتی ہے جہاں پہ گوسپ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے یا ایک دوسروں کے خلاف سازش کی جاتی ہے. ہمارے اسٹاف روم ایسے نہ ہوں. بالخصوص وہ ٹیچرز جو ہمارے اس ٹریننگ پروگرام سے گزرے ہیں وہ اپنے اسٹاف روم کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. وہاں ایک ٹیم اسپرٹ دیکھنے میں ملے، وہاں ایسا ماحول ہو کہ آپ بہترین ٹیچنگ اسکلز کو کے ساتھ کولیبریٹو لرننگ کریں. کولیبریٹو لرننگ کے بارے میں اس ٹریننگ پروگرام میں آپ کو نالج دی گئی کہ کس طرح آپ کولیبریٹو لرننگ کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں. بردرز اینڈ سسٹرز، ٹیچرز عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ پروفیشن تو بڑا آسان کام ہے، بچوں کو یاد کروا دینا ہے، میمورائز کرانا ہے، ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے، مارک شیٹ تیار کرنا ہے، ختم. لیکن ٹیچنگ پروفیشن دنیا کا سب سے نوبل پروفیشن اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے پورے طلبہ آپ کے کمانڈ میں ہیں. جیسا ایک پائلٹ تقریباً 250 لوگوں کو لے کر سفر کرتا ہے، وہ اڑان بھرتا ہے، اسی طرح آپ کے کلاس میں جتنے بچے ہیں ان تمام بچوں کو لے کر آپ تعلیم کی اڑان بھر رہے ہیں.
کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پائلٹ جو ہوائی جہاز چلاتا ہے کیا وہ اونگتا ہے، غفلت برتتا ہے یا کسی قسم کی تساہلی کرتا ہے؟ اگر وہ ارریسپانسبلٹی کا ثبوت دے گا تو سیدھا اس کی اپنی جان خطرے میں نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی مرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے 250 پیسنجر کی جان لے کر وہ مرے گا۔ یہی معاملہ ٹیچرز کا بھی ہے، لیکن انتر یہ ہے صرف کہ یہاں ٹیچر کی موت نہیں ہوتی بلکہ وہ بچوں کو ایسی وادی میں ڈھکیل دیتی ہے جو موت کے برابر ہی ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا آپ کا کردار ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ ایک بچہ اگر بہتر شہری بنتا ہے، صالح نوجوان بنتا ہے، خدا کا نیک اور برگزیدہ بندہ بنتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ خود بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ جتنی نیکیاں اس دنیا میں کرے گا وہ ساری نیکیوں سے آپ بھی فیضیاب ہوں گے، آپ کے حساب میں بھی تو اس تصور کے ساتھ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور لہٰذا میں اپنی بات کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے آخر میں پھر ایک بار آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ 3 مہینوں میں جتنا کچھ سیکھے ہیں اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے، ذمہ داری کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، اور بچوں کو صالح بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ آج جس طرح آپ اس فیلیسیٹیشن پروگرام میں سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، کل میدان حشر میں بھی آپ کو اللہ تعالی آپ کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے اور اس کے ذریعے آپ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور میدان حشر میں ہم تمام کو کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ تنویر صاحب۔ ہمارا یہ پروگرام جو 12 ہفتوں پر مشتمل تھا، جس کے فیسیلیٹیٹر برادر اسد اللہ عمری صاحب تھے، اس پروگرام میں تمام شرکا جو تھے ان کو ویڈیوز بھیجے جاتے تھے، ان ویڈیوز کو سننے کے بعد وہ لوگ ان کو اسائنمنٹس دیے جاتے تھے اور ان اسائنمنٹس کو وہ لوگ مکمل کر کے سبمٹ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا یہ پروسیس جو ٹریننگ کا شروع ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ اپنی نیٹ ورکنگ کر سکیں اور اس ٹیچنگ فیلڈ میں ہم لوگوں کو اور کیا نیا انوویشن لے کر کے آنا ہے، کیا نیا انوویشن لا سکتے ہیں، اس پر ہم لوگ غور بھی کر سکیں اور کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں۔ تو جہاں ہم اپنے ان پریکٹسز کے اندر انوویشن لانا چاہتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے، اس ٹریننگ پروگرام کے اندر بھی جو انوویشن آئے۔ اسی مقصد سے ہم لوگوں نے اپنے اس گریجویشن سیریمنی کے اندر یہ بات بھی رکھی کہ ہمارے جو شرکا اس پورے ٹریننگ پروگرام کو جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، وہ لوگ اپنے ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کریں کہ ان کو اس ٹریننگ پروگرام میں کیا چیزیں بہت اچھی لگی، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس کو امپروو اگر کریں تو ہمارا یہ ٹریننگ پروگرام اور افیکٹو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے فیسیلیٹیٹر جناب اسد اللہ عمری صاحب تھے، ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے جتنے اسٹیٹس جن سے جو ٹیچرس اس میں شریک تھی، ہر اسٹیٹ سے کوئی نہ کوئی ایک نمائندہ جو ہے وہ جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے احساسات کو جیب رکھے۔ تو میں باری باری سے جن 5 لوگوں کے نام برادر اسد نے مجھے دیے تھے، میں ان کا نام کال کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں گے اور انمیوٹ کر کے اپنے احساسات کو جو ہے رکھیں گے۔ یہ احساس ان کا جو ہے وہ 1-2 منٹ کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو میں پہلا نام جو لے رہا ہوں اس میں مس رابعہ بشرا صاحبہ ہیں، جو یو پی ایسٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ رابعہ بشرا صاحبہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور اپنے احساسات کو جو ہے وہ رکھیں۔ محترمہ رابعہ بشرا صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
My name is Rabia Bushra. I am teaching in Darsaga Islami Modern English Medium School, Moraon now. I am studying in Chhatrapati Shahuji Maharaj, Kanpur University. I am so glad that I become a part of it and attended the Markazi Talimi Board online teacher education program. Today I must say that it was the wonderful experience. I attended the training sessions and there I have tried all things, alhamdulillah. Sir, you keep us encouraged and you give us lifelong lessons. Markazi Talimi Board online teacher education program greatly expanded my understanding of how it can be used and taught to develop student self and focus on our students. So I must say that was very enriching experience for me to attend the Markazi Talimi Board online teacher education program training. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Jazakallah. शुक्रिया राबिया साहिबा। मैं अब इसके बाद जो हमारे दूसरी बहन अपना एहसास पेश करेंगी वो बिहार से हैं, मिस अफनान एजाज साहिबा। अफनान एजाज साहिबा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने एहसासात को रखें। आप अभी भी म्यूट हैं अफनान साहिबा जी, अब बोलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मुशफ़िक़ असातिज़े कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अफनान एजाज फलाही, मेरा ताल्लुक़ गया बिहार से है। तारीफ़ उस रब्बे कायनात की कि जिसके कब्ज़े क़ुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। क़ब्ल इसके कि मैं अपना तासुर पेश करूं, मैं शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझती हूं उन असातिज़े कराम का जिन्होंने वक्त और हालात की नज़ाकत को समझते हुए इस अहम मालूमाती कोर्स का आगाज़ किया और आज की इस महफिल का इनेकाद किया। खुसूसन मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मुज्तबा फ़ारूक साहब, जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, जनाब सलीमुल्लाह खान साहब, जनाब असदुल्लाह उमरी साहब और दिगर मुआविनीन व मुआविनात की, जिन्होंने हमारी इस ट्रेनिंग को अपने लेक्चर के ज़रिए नहायत ही दिलचस्प और कामयाब बनाया। मैंने इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स के ज़रिए बहुत कुछ सीखा और तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने में मुझे बहुत सहूलत हुई। मैंने अपने तलबा और तालिबात को दिलचस्पी से पढ़ाया और उनकी भी दिलचस्पी अपनी तरफ मरकूज़ की। और सबसे अहम बात ये कि बहुत कम अरसे में मैंने ये बहुत मालूमाती बातें सीख लीं। घर की जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए बआसानी इस कोर्स को मुकम्मल कर लिया। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हमें ये मालूम हुआ कि तालीम का मकसद शख्सियत साजी और जहन साजी है। हमें अपने शागिर्दों को एक अच्छा इंसान बनाना है। हम एक मुरब्बी की हैसियत से उन्हें तालीम दें ताकि वो बच्चे मुआशरे से जुड़े रहें और मुआशरे की खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा हो। एज अ टीचर हमारे अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग किस तरह ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए हमें एकेडमिक AICU किस तरह तैयार करना चाहिए। मज़ीद अखलाकियात की भी तालीम हमने इससे सीखी और इंशाल्लाह हम इस पर हद्दल इम्कान अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस बात की कायल हूँ कि मैंने अपने 4 साल टीचर जो मैं टीचिंग कर रही थी उसमें मैंने नहीं सीखा था कुछ, लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया, ये ट्रेनिंग की, उसके बाद से मैं एक मेंटर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहूँगी। और ये मैं कह सकती हूँ कि अब मैं एक ऐसे मुआशरे को तश्कील दे सकती हूँ जहाँ इंसानियत और अखलाकियात का बोलबाला होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह इस ट्रेनिंग की जो हमें सिखाया गया है मैं उसको बयान करूँ। आखिर में मैं एक बार फिर से यही कहना पसंद करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग में हिस्सा लें और इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें और इस कार्य खैर के साथी बने। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करती हूँ कि वो हमारे असातिज़े कराम जिन्होंने इस बड़े काम को मुंतखब किया और इसके लिए कोशिशें की, उनका बेहतरीन अज्र उन्हें दे और अल्लाह उन्हें बुलंदी दर्जात अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। शुक्रिया अफनान साहिबा। अब हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट मिस रजिया अली जो मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट हैं, अब अपने एहसासात को रखें। रजिया साहिबा। Assalamu alaikum everyone.
Myself, Razi Ali. I am from Al Maha English School, Siuni, Madhya Pradesh. First of all, I would like to thank the whole Markazi Talimi Board team, which has given me opportunity to speak here today. I am one of the lucky ones who got the chance to attend this wonderful training of Markazi Talimi Board. Your training was completely different and it was very powerful and influencing. I have learned a lot of things from this training. It was very informative and I feel I can use this with my students and staff. In this training, I have learned that how important is it to find purpose in our life. If we are living a life without a purpose, then our life is meaningless. As a human being, if we are not making positive differences in others' lives, then we are useless for the society. I have learned that what are my responsibilities as a teacher. A teacher is considered as a nation builder. A teacher can bring great differences in others' life. And during this training, I have realized that I also can make difference in others' life. I have learned the actual importance of teaching values. That if we teach values to our students at the correct age or during the foundation years, we can mold them into something very beautiful. We can turn them into wonderful human beings and make them useful for the society. Everything is possible if we put effort on it. In this training, I also learned the importance of holistic education about the overall development of a child. I have learned why is it necessary to become a mentor. I have learned why is it necessary to see the things and situations from others' point of view. I realized that I also can make difference in the lives of my students and in the society. At last, I would again like to say thanks to the Markazi Talimi Board team because this training did make a difference in my life and I feel that you have given me the purpose of my life. So thanks to Markazi Talimi Board team and you are changing lives. You are surely changing the lives of others. May Allah Ta'ala give you success in this world and also in the hereafter. Thank you very much. Assalamu alaikum. Jazakumullahu khaira. शुक्रिया रजिया साहिबा। अब मैं हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सनोबर अफशान साहिबा जो वेस्ट बंगाल से हैं, हमारी प्रोग्राम में शरीक थी, उनसे गुजारिश करूंगा तो अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपने एहसासात रखें। सनोबर अफशान साहिबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप लोगों ने मरकज़ी तालीम का ये रखा, ये काफ़ी अच्छा था एंड इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, बस अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन इससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं कि टीचर है तो मैं स्कूल में जाकर ही ये चीज़ बच्चों को सिखाऊं कि कैसे क्या करना है। ये अपने घर के बच्चों पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो उन्होंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताया था कि कैसे पेरेंट्स को कंफर्ट जोन में लाना है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनके वीडियो में जिसने बताए थे वो। और दूसरा वो एक और ये था AICU का जो वीक बच्चे हैं उनको कैसे करना है, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। और बीच में तो मैं इस प्रोग्राम एक्चुअली घर में कुछ परेशानियां आ गई थी जिस वजह से मैं ये छोड़ना चाह रही थी, बट जब सर से मैंने असद उमरी सर से जब मैंने बात की तो उन्हें काफ़ी मुझे हौसला दिया कि नहीं नहीं आप कर लीजिए। तो उनसे बात करके मुझे लगा कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए, तो सारी परेशानियों के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया। और आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि नहीं मैंने जो डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना चाहिए, तो शुक्र है अल्लाह का और आप सबका कि मैंने ये किया। ओवरऑल ये बहुत अच्छा था। शुक्रिया सनोबर साहिबा। अब मैं हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट
मिस अफसाना रूही साहिबा जो झारखंड से ताल्लुक रखती हैं, अफसाना साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके जो है अपने एहसासात रखें। अफसाना साहिबा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं अफसाना रूही झारखंड बोकारो से हूँ। मैं सबसे पहले मरकजी तालीमी बोर्ड के सभी मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को चलाया और इन 3 महीने के एजुकेशनल प्रोग्राम में हमें शामिल करके एक बेहतरीन टीचर बनाने में आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं खास तौर पर इस प्रोग्राम के सभी टीचर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस ट्रेनिंग की वजह से मेरे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और मेरे पढ़ाने का तरीका में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मरकजी तालीमी बोर्ड से जुड़ने से पहले मैं ये सोचती थी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा कर या होमवर्क कंप्लीट करवा के या टाइम को मैनेज करके या रिजल्ट अच्छा करवा के हम बेहतरीन टीचर कहला सकते हैं, पर इस ट्रेनिंग में जुड़ने के बाद मुझे यह लगा कि सिर्फ इतना ही करने से हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते, बल्कि अच्छे टीचर बनने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा मेंटर बनना होगा और बच्चों को पहले समझना होगा, उसके बाद फिर पढ़ाना होगा। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि इस तरह का ट्रेनिंग हमें वक्त पर वक्त मिलते रहे ताकि हम सभी को कुछ नया सीखने का मौका मिले। इस ट्रेनिंग से मुझे यह एहसास हुआ कि अगर हम रोशनी फैलाना चाहे तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो हम दिया बन जाए या फिर मिरर जो उस लाइट को वापस एनवायरनमेंट में फैलाता हो। मैं फिर से मरकजी तालीमी बोर्ड के सभी मेंबर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत कम टाइम में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। मैं आगे के लिए भी आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए जिससे हमें वक्त पर वक्त कुछ नया सीखने को मौका मिले। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आप लोगों ने अपने एहसासात जो है वो यहाँ रखे। मैं 2 बातें इस वक्त आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि हम टीचर्स की इस तरह की जो ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उन ट्रेनिंग्स का एक ग्रुप भी इवॉल्व करें और मुख्तलिफ जगह इस इंफॉर्मेशन को कैसे परकुलेट किया जा सकता है, नीचे तक पहुंचाया जा सकता है, उसके हम लोग भी जो है एक कड़ी बने। तो आप लोग इस कड़ी के हिस्सा हैं और इस कड़ी के हिस्से की हैसियत से आप लोगों के जहन में ये बात रहना चाहिए कि हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रोग्राम मुस्तकिल चलता रहेगा। अब इसके 3रे बैच का अनाउंसमेंट हम लोगों ने कर दिया है। आप लोग भी आपके एतराफ में जितने टीचर्स हैं कि जो लोग इसमें शरीक हो सकते हैं उनको मतवज्जे कीजिए कि वो लोग 3rd बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करके जो है अपने आप को जो है वो ट्रेन करें और कर करके जो है इस सोसाइटी की जो है वो खिदमत कर सकें। मैं इस 2रे बैच के जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव और क्या चीज़ उसके अंदर और रही हैं, इसके लिए इस प्रोग्राम के फैसिलिटेटर जनाब असदुल्ला उमरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस 2nd बैच के एक्सपीरियंसेस को कुछ यहाँ जो है वो शेयर करें और उसके बाद फिर हम चेयरमैन साहब की इख्तितामी कलमात के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो ब्रदर असदुल्ला उमरी से गुजारिश कि वो इस 2nd बैच के एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स को जो है यहाँ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 महीने से सुनते आ रहे हैं तो फिर और सुनाने को कह रहे हैं। टीचर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझसे छुटकारा पाए और भाग जाए। I would like to thank the Creator for giving this opportunity. Overall, I should say that this has been a dream for us, and this is something which we are blessed with, because the Creator has got his own plan and he selects certain people. कुछ लोगों को वो चुनता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ टीचर्स से कि
आप लोगों को इस प्रोफेशन के लिए चुना गया है। हम ये समझते हैं कि हम इस प्रोफेशन में अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। We have not come into this profession by choice or by chance, or the third statement which I say, normally teachers sometimes they say it's a choice that I selected this, or it's a chance that I didn't get a job so I became a teacher. So either it is a choice or a chance. But for me, I would say that it should not be a choice, it should not be a chance. It should be passion which should bring a person into this profession. Similarly, the creator also selects certain people for each and every profession based on the qualities that human being has got. So many a time people say that after a long journey, I realized that why did I get into this profession? Where people say that I don't have patience. But today, after this long journey, I feel I have a lot of patience than anybody else. And that is why I say I'm lucky for being a teacher to the teachers. I'm not only teacher to the students, but I've also been very lucky to be a teacher to the teachers and to the principals and to the management. Thanks to the Markazi Talimi Board, the entire Jamaat team for having that trust on me. और उन्होंने ये सोचा कि उम्री ये कर पाएगा. If I am being able to do this, it's only because the support which I am getting from my creator and the support which I am getting from my team members. And also I'd like to thank that I've got a lot of support from my team members in my school, where we do a lot of experiments. Practically we do these experiments. जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो सारी चीजें हम यहाँ जहाँ मैं आज इस वक्त बैठा हूँ विजयवाड़ा में, यहाँ के जो टीचर्स हैं उन टीचर्स का जो सपोर्ट मेरे लिए रहा है वो मैं कहता हूँ और वो करते हैं. तो वहां जब सक्सेस होता है तो वही फॉर्मूला मैं आपके पास लेके आता हूँ. मिसाल के तौर पे जो न्यूज़पेपर एक्टिविटी हमने इस बार बहुत ही डेप्थ में हमने किया था, ये हम रोजाना यानी हर दूसरे पीरियड में हम इस एक्टिविटी को करते हैं और इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर मैंने काफी तब्दीलियां देखी हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चेंज. I have seen a lot of students learn languages because of the activity which we do. So I would say that I have been lucky to have a good team who work passionately for the development of the teachers. So today I just want to share 2-3 thoughts before I pass on to our chairman Mustafa Farooq Sahab. Yes, comparatively our students, I would not compare and say the first batch students were like this and the second batch students are like this. Students are students for me. When a teacher is questioned, which student is better? Yeah, मैंने काफी सख्ती की आप लोगों पे, काफी बार मैंने गुस्से में आप लोगों से सख्ती में काम करवाया. असाइनमेंट के डेडलाइन मैंने सख्ती पे आपको कहा कि इस वक्त तक आपको भेजना है वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. अब असाइनमेंट्स का एक मसला रहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं तो टीचर्स के जहन में ये बात है कि why we are teachers, we have learned everything and come and why should we do assignments? But remember, a teacher should always be a learner, and when you are learning something you will really have to give an examination. When you learn you will have to attend an examination. That examination can be an internal or an external or anything. तो इसलिए हमने इतने सारे मॉड्यूल्स हमने जो I don't want to repeat and waste my time on what modules we covered, but we had internal assessments for every assignment. I had asked you either to write an assignment or we had Google Forms, we had newspaper activities, and finally we also had a Viva where unfortunately networking की वजह से टाइम की वजह से मैं खुद आपसे पर्सनली सवाल नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने सवाल आपको बोले तो आपने उसको रिकॉर्ड करके भेजा.
तो असाइनमेंट्स हमारे लिए जरूरी है, और इस ट्रेनिंग में जब भी हम करेंगे तो असाइनमेंट्स के बगैर ट्रेनिंग नहीं होगी. दिस इज वेरी क्लियर फॉर अस. तो मैं आप लोगों के लिए दो बातें हैं. एक, जैसे मैंने कहा, पैशनेट है. कभी अक्सर मैंने देखा है कि हम हमारे जिंदगी में वी आर सो बिजी विद आवर वर्क, with our personal life, with our other work. We sometimes we are teaching in the morning hours and we are doing other work. For example, we are connected with some organizations, and उस organization के काम की वजह से हम अपनी जिम्मेदारियों पे कभी-कभी कमी पेशी कर देते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. As a teacher, your topmost priority is your students. Your topmost priority after the family is, if you are taking a career as a teacher, after family, after the entire family, whether it is your husband, your children, your parents, your in-laws, sisters, brothers, the entire khandan, uske baad it becomes a responsibility. The priority should always be your students in the class, not the parents of your school, not the management of your school, not the principal of your school. The priority should always be the students, because we are there in the classroom because of the students. Remember, I always tell, अगर बच्चे नहीं हैं तो हम टीचर्स, एज ए टीचर हम नहीं हैं. तो इसलिए बच्चों की मौजूदगी इतनी लाजमी हो जाती है कि उनके बगैर हम एज ए टीचर हम कहीं नजर नहीं आए. We are not respected if students are not there. When students are there, we are respected. We get that honor, we get that satisfaction that we have done something and we are being change makers in the society. दूसरी बात, there's a small incident which I want to share. There was a student who went to a professor in Russia and asked the professor ke students who wrote the exams have got 5 out of 5. Students who had not written exams, students who had not done anything also had got 2 marks. Why are these students getting 2 marks? इन बच्चों को 2 मार्क क्यों दिए गए जो कुछ भी नहीं किए? तो अब हमारे बैच में भी काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे टीचर्स ये सोच रहे होंगे कि हमको मार्क्स मिले हैं, कुछ टीचर्स ने कुछ अच्छा किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मार्क्स सबको मिले हैं. इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ कि हमने वक्त निकाला. दैट टीचर, जो टीचर, वो इस कहानी से, इस इंसिडेंट में ये मैंने सीखा था कि दैट टीचर टोल्ड द स्टूडेंट इन रशिया में ये सिस्टम है कि minimum scoring mark is 2. Why is that 2 given? Because the student gets up in the morning, he gets ready for the school, he goes to the school, his six were there for 6 hours in the day. He goes back, he does some homework. अब बच्चे ने एग्जाम में पास किया है नहीं है, that is a different story. तो इसलिए असेसमेंट जब आप करते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे ने क्या मेहनत, कितनी मेहनत की है. जैसे आप लोगों ने मेहनत किया, you struggled, you worked hard to complete the assignments. One thing I should tell you, when you started writing the assignments, आप लोगों ने struggle किया, लेकिन बाद में देखिए, आप खुद अपने असाइनमेंट्स कंपेयर करके देखिए. मैं नहीं कहूंगा, अभी तनवीर साहब ये सवाल कर रहे थे कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या था, तो ये जवाब मैं उनको नहीं दिया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखना शुरू किया, उन असाइनमेंट्स के मुकाबले में आपके आखिरी असाइनमेंट्स जो मुझे आए, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट कितनी हुई है, आपने कितना. हाँ, ये मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोगों ने कॉपी किया है, लेकिन कॉपी करना भी एक आर्ट है. कॉपी करना इतना आसान नहीं है. ये अलग बात है कि मैं पकड़ लेता हूं कि किसने कॉपी किया, लेकिन मैं इस पॉइंट को रेज नहीं करता, बिकॉज यू हैव पुट एफर्ट्स. आपने मेहनत की है उन चीजों को करने के लिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था. तो इसी मेहनत को जारी रखिए कि बगैर मेहनत के कोई फल नहीं मिलता. हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको खाना नहीं मिलता, ये हम जानते हैं. हम बीज बोते हैं तो वो बीज जो है फल पेड़ बन के जब बाहर निकलता है तो उससे फल आते हैं. तो ऐसी थोड़ी बीज ऑटोमेटिकली जमीन में नहीं जाता और उसको देखे बगैर पेड़ नहीं बड़ा होता. जिस तरीके से एक किसान उसको बड़ा करता है, जिस तरीके से एक माँ मेहनत करके बच्चों को बड़ा करती है, द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर हमारे पास भी है. जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी मैंने
कल एक पोस्ट फेसबुक पे पढ़ रहा था कि टुडे एकेडमिशियंस जो टीचर्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वैल्यूज, और उसी वैल्यूज को हमने पूरे मॉड्यूल्स में हमने वैल्यूज को ही इंपॉर्टेंस दी। होलिस्टिक एजुकेशन इज अ मिशन फॉर अस। मिशन फॉर अस की मैं जब बात कर रहा हूं तो मरकजी तालीमी बोर्ड का मिशन ये है कि हम we create a holistic education approach kind of system in every school, and that is possible when every teacher understand what is holistic approach. So if you could do this, जैसा खान साहब ने कहा कि this is what the mission is, और हम लोग हर जगह पहुंचना चाहते हैं। कभी कभी ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जो करता है वाकई में भलाई के लिए करता है। लॉकडाउन अगर नहीं होता तो शायद हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू ही नहीं करते। हम इसी इंतजार में रहते हैं कि उमरी जाएगा या उमरी किसी से 10 ट्रेनर्स जाएंगे गांव-गांव और टीचर्स को ट्रेन करके आएंगे। अगर इसी इंतजार में 10 साल गुजार दिया और 10 साल गुजार दिया। तो लॉकडाउन प्रूव्ड अ ब्लेसिंग फॉर अस, एंड कई जरिए हमने निकाले। टीचर्स लर्न ऑनलाइन टीचिंग किस लिए, किस तरीके से करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। टीचर्स लर्न, आप लोगों ने इसको सीखा तो हम उसका फायदा उठा के हम आप लोग तक पहुंचे और ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग करना शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बैचेस पूरे किए। तो ओवरऑल वी हैव ट्रेन्ड अबाउट 100+ टीचर्स। हाँ, कुछ टीचर्स असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए, एग्जाम्स नहीं दिए, लेकिन उन टीचर्स भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। तो ओवरऑल I think 83 teachers who got registered in the second batch, and in the first batch 40+. So overall about 130 teachers we have trained so far, and that is a big number for us. And मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में this number would get doubled and would go on to 100 times with your efforts. आप लोग इसकी अहमियत समझें, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे तो फिर दूसरे लोग भी जुड़ना शुरू करेंगे। आपके कहने से ज्यादा आपके करने को अगर देखेंगे तो वो लोग भी जुड़ेंगे। Now we had about 83 teachers in this group. About 50 of them were there till the end. बाकी के 30 बीच में दूसरे रीजन से काफी रीजन से छोड़ गए, लेकिन कुछ लोगों ने वादा किया है कि वापस आएंगे अगली बैच में और कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। And overall, to end the story here, I would say that we had really good learning happening. मैंने काफी सारी चीजें सीखी आप लोगों से। The toppers of this batch are Rabia Bushra, Afnan Ejaz, Razia Ali, Alvina Noor. These are the toppers. एक 2-3 टीचर्स हैं जिसमें मैं खासकर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे तिलावत की थी मोहम्मद रजा साहब ने। मोहम्मद रजा साहब ने काफी परेशानियों के बाद इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। बार बार मुझे कभी गुस्सा भी आता था कि बार बार डेडलाइंस मांग रहे हैं कि सर डेडलाइन बढ़ा दीजिए, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर दूंगा। शुरू में मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी मेहनत करके उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट किया। दूसरी थी जो सोनाबर, जो वेस्ट बंगाल से जो टीचर हमारी थी, उन्होंने जब शुरू में ज्वाइन किया था उन्होंने कहा सर मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ज्वाइन हो जाइए, आपको अच्छा लगा तो आप सीखिए। तो बीच में काफी परेशानियां हुई उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। सो हर टीचर के पीछे कोई ना कोई कहानी है। परेशान हुए हैं, तबीयत खराब हुई है, कोविड की वजह से कुछ लोगों को उन्होंने खोया है अपने घर में, इसके बावजूद इस प्रोग्राम को कंप्लीट किए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि आपके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आप लोगों ने देख लिए हैं। मैं इन सर्टिफिकेट्स को इंशाल्लाह मंडे के दिन पोस्ट करूंगा। मैं इस प्रोग्राम का इंतजार में था ग्रेजुएशन का। उसके बाद मैं आप लोगों ने चेक किए हैं, मैंने करेक्शंस कर दिए हैं। तो मंडे इंशाल्लाह आपको स्पीड पोस्ट के जरिए से आपको सर्टिफिकेट्स पहुंच जाएंगे। जब आपको मिल जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं। तो ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है ऐसे ही रहेगा। जितने टीचर्स हैं वो टीचर्स इसमें रहेंगे। आपको कभी भी कोई हेल्प अगर चाहिए मरकजी तालीमी बोर्ड से, आप इस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैच के टीचर्स जिसको आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, आई एम ऑलवेज देयर टू टीच यू, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू लर्न फ्रॉम यू। तो overall again I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to thank the entire team
the team who's in front of us, the team who's behind me, who's been supporting me to make this. दो तीन teachers और भी हैं whom I would like to thank. फर्स्ट बैच की जो टीचर हैं फिरदौस, फिर उसके साथ आरिज उस्मानी है, और सबसे उसके साथ साथ हमारे यहाँ की जो स्कूल, जिस स्कूल में हम इस्टेब्लिश किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उस स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं मिस श्वेता, ये असाइनमेंट्स करेक्शन करने में मेरी काफी मदद की है. तो आई वुड लाइक टू थैंक Miss Shweta also for really supporting me and giving me that support which is required, because इतने बच्चों के करेक्शंस मैं अकेले नहीं कर पाता. तो उर्दू के कुछ असाइनमेंट्स फिरदौस ने करेक्शन किए थे, तो ये सारी टीम के बगैर मैं इस प्रोग्राम को अंजाम नहीं दे पाता. तो I would like to thank all of these members for supporting me all the time, and I hope this would continue. I wish you all the best. आप लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आई विश कि आप लोग इसको क्लासरूम में जाके इम्प्लीमेंट करिए, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम रहेगा. आप थैंक यू बोलने के बजाय अगर इसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बच्चे अगर बदल जाएंगे, तो देन दैट वुड बी अ बिग थैंक यू फॉर द एंटायर टीम ऑफ अस. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. अब इससे पहले कि मैं जनाब मुस्तफा फारूक साहब चेयरमैन मरकजी तालीमी बोर्ड को गुजारिश करूं कि वो अपने इख्तितामी कलमात पेश करें, कुछ बातें इस बैच से मुतालिक बता देना है. हमारे इस बैच में जो है आसाम साउथ, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन 7 स्टेट से जो है वो टीचर्स शरीक हुई थी. बहुत सारी टीचर्स की गुजारिश थी कि उनको जो है सिर्फ मॉक स्पेक्टेटर की तरह सिर्फ कोई लिसनर बन करके जो है इस प्रोग्राम में शरीक हों, लेकिन चूंकि हमारी इस ट्रेनिंग की कंडीशन ये थी कि अनलेस यू सबमिट दिस असाइनमेंट्स यू कैन नॉट कंटिन्यू दिस ट्रेनिंग. तो इस वजह से बहुत सारे टीचर्स को ये बहुत गिरा गुजरा और इस वजह से उन लोगों ने जो है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं किया. असद जिस फिगर को बता रहे थे कि जिस वक्त हमारी इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी तो 83 टीचर्स ने इसमें जो है वो शिरकत की थी, और आखिर में जो रिजल्ट हमारे आए थे उसमें 49 टीचर्स के जो रिजल्ट्स आए थे. हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहली मरतबा हम लोगों ने जो गूगल क्लासरूम्स वगैरह के जो जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की थी. बहुत से टीचर्स हमारे इस प्रोग्राम में इस वजह से भी शरीक नहीं हो पाए थे कि उन लोगों के पास इस तरह का स्मार्ट मोबाइल नहीं था कि वो लोग इसको कंटिन्यू कर सकें, इसलिए कुछ टीचर्स इस वजह से जो है वो विड्रॉ हो गए थे. तो ये हमारे इस पूरे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं मुस्तफा फारूक साहब के लिए जो है शेयर कर रहा था और अपने बाकी सेक्रेटरी हजरात के लिए शेयर कर रहा था. अब मैं आखिर में जनाब मुस्तफा फारूक साहब चेयरमैन मरकजी तालीमी बोर्ड से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इख्तितामी कलमात पेश करेंगे. जनाब मुस्तफा फारूक साहब. आजान खत्म होने को है. जी जी, आप तब तक कुछ तो आप कुछ तब तक ऐड कर लीजिए 2-3 मिनट, फिर मैं आजान की आवाज आ रही होगी आप. जी जी. तो एक दो मालूमात और कुछ बातें मैं अपने जो लोग इसमें ज्वाइन हुए उनसे करना चाहता हूं कि हमारे 3rd बैच का इनॉग्रेशन हम लोगों ने जो है वो कर दिया है. उसकी एडवर्टीजमेंट और उसकी लिंक असद ने आपको जो है ग्रुप में शेयर की हुई है. आप जितने भी ज़्यादा स्कूल्स और टीचर्स हैं उनको ये शेयर कीजिए. ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस इसी तरह का एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है. इतने ही पीरियड्स का है और यही सब चीज़ें स्किल्स वो सिखाते हैं. उनके उस स्किल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो फीस है दैट फीस इज 22,000 रुपीज़. लेकिन मरकजी तालीमी बोर्ड की तरफ से हम लोग भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपीज़ फीस ले रहे हैं. तो ये फीस सिंबॉलिक इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो सीरियस लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वाकई ट्रेनिंग हासिल करें वही लोग हमारे साथ जो है वो जुड़ें और बाकी लोग ना आए. तो इस वजह से हम लोगों ने इसको रखा है. तो आप लोग इस टीचर्स ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक पहुँचाइए. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी से एसोसिएटेड जो स्कूल्स हैं वही इसमें शरीक होंगे. जो दूसरे स्कूल्स के टीचर्स हैं जितने भी मिल्लत में चलते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप चलाता हो, हर वो टीचर जो अपने आप को स्किलफुल करना चाहता है वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शरीक हो सकता है. तो आप लोगों से इस पर भी गुजारिश है कि आप लोग इस पर भी जो है वो गौर कीजिए. और हमारे इस टीचर प्रोग्राम जो फीडबैक आया उस फीडबैक पर एक गुजारिश मेरी ये है
کہ ہمارے ٹیچرز جہاں ہمارے پازیٹیو پوائنٹس کو بتا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم کو اور کہاں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اس پر نگاہ نہیں رکھیں گے کہ ہماری اپنی کمزوریاں کیا ہیں تب تک ہم اپنے آپ کو امپروومنٹ نہیں کر سکتے. تو میری ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں سے بھی رہے گی کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں تذکرہ کیا ہے تو وہ گروپ میں اس کو شیئر کیجیے کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا ایسی چیزیں اور پائی کہ جس پر ہم کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس میں امپروو کر سکیں. میں فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے پاس اگر اذان مکمل ہو گئی ہے تو اپنی گفتگو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس 5 منٹ میں بات مکمل کر لوں گا. سب سے پہلے تو تنویر صاحب, اسد اللہ صاحب, سلیم اللہ خان صاحب اور یہ ٹیم کو بہت بہت دعائیں کہ ان لوگوں نے ایفرٹس لیے اور وہ اس کو جاری رکھیں. اللہ ان کی مدد فرمائے, ان کی آخرت کا صلہ بنائے. اس سے زیادہ میں ان ٹیچرز کو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور جن لوگوں میں یہ عادت ہوگی کہ اپنے آپ کو مستقل امپروو کرتے رہیں, پھر وہ لوگ ہوں گے جن کو دوسرا کوئی کمپیٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ سیکھنے کا عمل ایسا عمل ہے جو مرنے تک جاری رہنا چاہیے. اسی کی ترغیب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور فرمایا کہ سیکھو گود سے لے کر گور تک. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ نیچر ہے, اور وہ ہر چیز سیکھتا ہے, حالانکہ اس کو نہ بھی بولنا آتا ہے نہ چلنا آتا ہے, لیکن ہم اس کو آبزرو کریں تو وہ نیچرل پروسیس میں وہ سیکھتا رہتا ہے. یہ سیکھنے کے عمل کو اگر وہ جاری رکھتا ہے ارادتاً پلانڈ وے میں اور مرنے تک سیکھتا ہے تو وہی پھر سکھانے کے قابل ہوتا ہے. اور کم از کم ٹیچر وہ ایسے پیشے میں ہے جو بہت پائس پیشہ ہے, بہت پائس پروفیشن ہے. اس لیے کہ کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنا, وہ چیز صحیح ہو غلط ہو, ٹوٹ جائے پھینک دیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ٹیچر جس چیز کو تیار کرتا ہے وہ نسلیں ہوتی ہیں, وہ انسان ہوتے ہیں, وہ شہری ہوتے ہیں, وہ امت کی قوت ہوتی ہے. اور ان کی تعمیر کے لیے جتنی توجہ اور جتنی تیاری کی ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ خود اپنے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس سے کر سکتے ہیں. اس کو 1-2 اشارے سے سمجھ دوں کہ جو بھی دنیا میں جو کمیونٹی ہوگی وہ جب تک ریسرچ اور علم کے شوق سے سرشار نہیں ہوگی تب تک وہ نہ صرف کمپیٹ کر سکتی ہے اور نہ اپنی قیادت کو برقرار رکھ سکتی ہے. جو لوگ بھی اپنی پوزیشن کو, لیڈنگ پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتے, بلکہ ان کو مستقل اپنی جدوجہد جاری رکھنی پڑتی ہے, ادروائز دوسرے لوگ آ کر ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تاریخ اس پر شاہد ہے. تو سیکھنے کا عمل اگر آپ کسی بلندی کو پہنچ جاتے ہیں تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ اب تو میں سیکھ چکا ہوں اور اس کے بعد سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو پھر زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ سکون محال ہے فطرت کے کارخانے میں, سی بات تغیر کو ہے فقط زمانے میں. یعنی وہی لوگ لیڈ کر سکتے ہیں جو لوگ کنٹینیوس اپنے سیکھنے کے پروسیس کو جاری رکھتے ہیں. تو چاہے آپ نے بی ایڈ آپ میوٹ ہو گئے ہیں فاروق صاحب. ہاں جی. اور سیکھنے عمل کو مرنے تک جاری رکھیں. اس کی ضرورت اس واسطے بھی ہے کہ یہاں پر میجر پریزنس جو ہے وہ کمیونٹی کے ٹیچرز کا ہے یا ان ٹیچرز کا ہے جو کمیونٹی میں سرو کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے میجورٹی سماج کے ہیں. لیکن ایک بات جو ہماری کمیونٹی میں نوٹ کرنے کی ہے کہ بینگ اے مائنورٹی, اس کی ذمہ داری اور لوگوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے کہ وہ میجورٹی سے زیادہ پرفارم کریں. اگر وہ زیادہ مفید ہوں گے تو زیادہ ریسپیکٹیبل ہوں گے, لیکن اگر وہ لائبلٹی بن جائے تو پھر ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جس عزت کے وہ مستحق ہوتے ہیں. اس لیے یہاں ہم کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا کمپیٹیو بنائیں کہ وہ دیش کی ضرورت بن جائے, وہ دیش کا ایسٹ بن جائے, دیش کو سرو کرنے والے بن جائیں. جو لوگ وجوہات بتا کر اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں کہ سب اب یہ ایسا ہے اس لیے ایسا ہو گیا, ایسا ہے اس لیے ویسا ہو گیا,
تو वो कामयाब लोग नहीं होते। कामयाब वो होते हैं जो वजूहात पर काबू पाते हैं, ओवरकम करते हैं और ओवरकम करके वो प्रेजेंट करते हैं जो लोग नहीं प्रेजेंट कर पाते। तो ये जो कॉम्पिटिटिव जज्बा है, ये जज्बा जिन लोगों में होता है वही लोग कुछ कर पाते हैं। अब आप देखिए कि भारत के कई ऐसे हमारे शहरी हैं जो यूएस में कई यूएस में कई ऐसे बड़े बड़े कारपोरेट में सर्व कर रहे हैं, और सर्व करने वाले नाम अगर आप देखें, मैं 3-4 नाम ही आपको सुनाऊं, या अजय पाल का हो, या नितेश का हो, या इसका सुंदर पिचाई का हो, शांतनु का हो, इंदिरा नुई का हो, वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं जो भारतीय हैं और भारत में क्या ओरिजिन रखते हुए यूएस कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि हमको अगर यहाँ पर कुछ करना है तो हमको बहुत सी माजरतों से, बहुत से तरह से वजूहात बताने से गुरेज करना चाहिए और अपने आप को इस पोजीशन पे लाना चाहिए कि हमारे बच्चे कई ऑड्स के बावजूद उनमें इल्म का शौक इतना पैदा हो जाए और वो कंटिन्यू इसके लिए जस्तजू करते रहें कि वो फिर कॉम्पीट कर सके। अगर वो कॉम्पीट करते हैं तो ना सिर्फ अपने आप को सेव कर सकेंगे, ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, बल्कि वो मिल्लत के सही नुमाइंदा होंगे। तो इस पहलू से हम ये समझते हैं कि मुस्तकिल जो लोग तज़किये के इस प्रोसेस को जारी रखते हैं वही लोग जो है कंटिन्यू अपने न सिर्फ सर्वाइव करने की पोजीशन में होते हैं बल्कि वो लीड करने की पोजीशन में आते हैं। आखिर में सिर्फ इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हम जिस दीन से वाबस्ता हैं उसमें हमको जो इंस्पिरेशन मिलता है वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और वो सीरत की उस एक मिसाल को देकर मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये है कि जो शख्स यतीम था, यसीर था, जिसके पास वसाइल नहीं थे, जो नबूवत से और विजन से सरफराज किया गया तो उसको फिर लोगों ने पनपने नहीं दिया, जिसको घर छोड़कर निकलना पड़ा। लेकिन वो शख्स जब रुखसत होता है और उसका जो 23 साल परफॉर्मेंस है, 13 साल तो उसके मक्का के बेसिक तैयारी के, और उसके बाद 10 साल उसको फील्ड में अपने आप को मनवाने के हैं। तो 13 साल के बाद जब रुखसत होता है तो वो शख्स इस पोजीशन में रुखसत होता है कि 12 लाख स्क्वायर माइल की स्टेट डेवलप कर चुका होता है, जिसको रहने के उसके घर से निकाल दिया गया था, और वो 12 लाख स्क्वायर माइल का हेड होता है। जो यतीम था, यसीर था, अब वो इस पोजीशन में होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के लिए वो अपने गवर्नर डिप्यूट कर रहा होता है। वो इस तरीके से इंसानियत का मुहाफिज बनता है कि सारी इंसानियत के लिए रहनुमा होता है। तो हम जिस प्रोफेशन में हैं हमको इसकी जस्तजू करनी चाहिए कि हमको वाकई अगर अपने दीन से, अपने नबी से प्यार है तो नबी का वो उसवा सीखिए जो इंसानियत साजी का एक लाजवाल और लासानी शाहकार है। अगर हम इस चीज़ को उस पहलू से, उस नीयत से इख्तियार करेंगे, आपका एक प्रोफेशन आपके लिए इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला आपको तमाम ऑड्स के बावजूद इससे उभरने और इसके मुताबिक अपने आप को संवारने और नस्लों को उसके मुताबिक संवारने की तौफीक बख्शे। आप सबको शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह मुशर्रफ फारूक साहब। मैं इस प्रोग्राम में शरीक तमाम हमारे सेक्रेटरीज, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान और इस सेकेंड बैच के जितने भी स्टूडेंट्स जो इसमें शरीक थे, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहरहाल उन लोगों ने अपना वक्त निकाला और वक्त निकाल करके जो है इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस पूरे सेकेंड बैच के प्रोग्राम को जो है मुकम्मल किए। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से वो लोग आज इस प्रोग्राम में जो है वो शरीक नहीं हो पाए। जिस तरह असद ने आप लोगों से कहा कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया था कि इस प्रोग्राम के ग्रेजुएशन सेरेमनी के हो जाने के बाद आप लोगों के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो कुरियर किए जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। हम इस उम्मीद पर अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि हम सिर्फ जो है कुछ देर मिलने के लिए नहीं बल्कि एक टीम बनाने के लिए जो है मिले हैं। हमारी ये टीम बनी है और हम टीम बन करके एक चेंज जो है उसको डेवलप करेंगे और इस चेंज से जो है इस एजुकेशन फील्ड को जो है वो सर्व करेंगे और इसके अंदर इनोवेशन लाने की जो है वो कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बात की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाए। Jazakallah Khan Sahab. Thank you everyone. शुक्रिया।